खोर माफिया ने जुल्म की इंतहा कर दी। एक 23 साल नौजवान को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस हवाले से हम बात करते हैं मकतूल के वालिद से कि मामला था क्या, कौन लोग हैं ये, और इनके बेटे के साथ क्या मामला बना कि उन्होंने इनके जवान साला बेटे को बड़ी बेरहमी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। बात करते हैं मकतूल के वालिद से। सबसे पहले हमें बड़ा अफसोस है जी, जो इतना बड़ा जुल्म हुआ आपके साथ, जवान साला बेटे को कत्ल कर दिएगा। क्या मामला था, क्या कब से ये सिलसिला शुरू हुआ? जी सर, ये 2 साल पिछे ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਨੂਨ, ਉੱਥੇ ਮਸਲ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਣੀ, ਵਾਲ ਕਟਾਣੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਰ ਆਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਮਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਮਾ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਇਹ ਬੱਲੜ ਨੇ, ਜੱਟ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪਤਾਖੋਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੈਡ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਹੈ, ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਇਹ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਗਨ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਆਪਣਾ 14ਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਖੁੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 14ਵੀਂ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ 16 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ 14ਵੀਂ? 14 14 ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਆਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੋ ਆਏ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬੂਜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫੋਨ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਤਾਖੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ? ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਊਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸਨੂਨ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਡੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਜਿਆ, ਮੇਰੇ ਲੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੈਰ ਵੱਜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਜ੍ਹਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 10,000 15,000 ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੈਡ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ को नहीं करवाएंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शरकपुर के नुमाइंदा मलिक जावेद, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी जावेद साहब बताइएगा। जी सर, ये जो मुलजमान हैं ये हमारे इलाके में दहशत की अलामत बने हुए हैं। इन्होंने इलाके में खौफ व हरास फैलाया हुआ था। तकरीबन काफ़ी देर से ये लोगों को बत्ताखोरी में और कत्ल में, डकैतियों में, बहुत सारी वारदातों में ये शामिल थे और वक्तन फ़ौक्तन इनके ऊपर कंप्लेंट होती रही हैं। लेकिन वही बात कि जब उनको डराते थे, धमकाते थे, तो वो अपनी कंप्लेंट्स वापस ले लेते थे। इस वजह से ये अपने जुर्म भी करते थे और बच भी जाते थे। लेकिन अभी जो जिस कत्ल में जो वारदात इन्होंने की, वो अभी उन्होंने बताया है कि ये पहले भत्ता मांग रहे थे, छोटे छोटे बातें करके कि ये हमें इतने पैसे दो, इतने पैसे दो। 7-8 लाख रुपया पहले इन्होंने लिया भी है। लेकिन अब जब उन्होंने वो भत्ता नहीं दिया या वो पैसे नहीं दिए, तो उन्होंने एक जवान साला उनका बेटा जो है उसको कत्ल कर दिया है।
और मैं अपनी तरफ से ये समझता हूँ कि ये एक पुलिस जो शरकपुर पुलिस है और जो DPO शेखपुरा है, उन्होंने बहुत आला इक़दाम किया है और बहुत आसान कदम उठाया है कि इन मुसलमान को गिरफ़्तार किया है। और ये भी साथ कहा है कि ये जो मुद्दई हैं हम इनको सिक्योरिटी भी देंगे और इनके साथ पूरा तावन करेंगे ताकि ये जो मुलजमान हैं अब कैफरे करदार तक पहुँच सकें, बच ना सकें। एक खौफनाक भत्ताखोर जो माफिया है, ये गैंग है, ये पूरे इलाके के लिए खौफो हिरास की अलामत बन चुका है और कोई डरते हुए कार्रवाई के लिए पुलिस को दरखास्त तक नहीं देता। मुबैना तौर पर कई लोगों के पहले भी इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया, कत्ल किया, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो पुलिस में जो है दरखास्त दे सके, इनके खिलाफ कार्रवाई करवा सके। लेकिन इस सारे मैटर के हवाले से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब और CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा की विजन के मुताबिक DPO शेखपुरा ने इक़दामात को जो मज़ीद जो है उन्होंने तेज़ करने के लिए अहकामात जारी किए और शरकपुर में जो मर्डर हुआ एक नौजवान का, उस हवाले से SHO थाना शरकपुर शहजाद अहमद, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। इनकी टीम ने उन चारों खौफनाक जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है और जिन्होंने एक तो नौजवान को कत्ल किया ही है, उससे पहले भी इनके हवाले से बहुत सारी जो केसेस हैं वो सामने आए हैं। बात करते हैं SHO थाना शरकपुर शहजाद से। जी शहजाद, बताइएगा, एक खौफनाक जो भत्ताखोर माफिया ये गैंग है, ये इससे पहले भी इनकी क्या क्या जो है ये लोगों को डराते धमकाते रहे हैं और क्या क्या वारदातें करते रहे हैं, और अब जो मर्डर के बाद के मामला वो भी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पूरा एक ख़ानदान है जो कत्ल, इक़दाम कत्ल, बत्ताखोरी, अगवा बराए तवान में इन्वॉल्व रहा है। पास्ट में इन लोगों ने इस तरह के मुख्तलिफ़ अज़लाम में ये जराइम किए हैं। तो ये जो अभी रिसेंटली ये कत्ल हुआ था, मर्डर, इसमें ये चारों लोग इश्तिहारी हो गए थे और मुद्दई को थ्रेट करते थे कि आप अपने केसेस से विदड्रॉ करें। ਇਹ ਚੌਥਾ ਕਤਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਸ 3 ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਰੈਡ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਸਲ ਧਮਕੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਹੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਲੈਣਾ, ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 1000 ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਦੇਣਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਨ ਲੈਂਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਤਾ? ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਸਲ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਦੇ ਦਿਓ, 15 ਦੇ ਦਿਓ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਲੈ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ। ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਸਲ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਵੀ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪਤਾ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਾਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਗਾਲ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਮੰਗਿਆ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਏ ਦਿਨ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਗਾਲ ਗਲੋਚ ਕੱਢਦੇ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਸਲਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ 2 ਕਿ 3 ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਫਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਔਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਅਮਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਲ 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸਊਦੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ फैर मार देते हैं। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के जो ये कज़न्स हैं, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से कि क्या पहले कभी इनको पता था
कि उनके कज़न का कोई इस तरह का मसला चल रहा है, भत्ताखोर माफिया उसके पीछे है और उसको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर सकता है। बात करते हैं इनसे। भाई इससे पहले कोई शक हुआ हो, कोई इस तरह का मामला हुआ हो या आपके कज़न की लड़ाई झगड़ा हो कहीं पे? नहीं भाई, हम ना पहले इनको पता देते थे, बाद में हम जब हमने नहीं ना दिया तो इन्होंने फिर हमारे भाई को कत्ल किया। अच्छा, भत्ता कब से ले रहे हैं ये लोग और किस बात का भत्ता लेते हैं? ये 10-12 साल से ले रहे हैं। ये कहते हैं हमें, ये गन पॉइंट पे लेते हैं, कहते हैं हमें बता दो नहीं तो हम आपको मार देंगे, इसलिए इन्होंने हमारे भाई को मारा है। इलाके में कैसा इनका कितना खौफ है? क्या बहुत खौफ है इनका, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, ना कोई कंप्लेन करता है पुलिस स्टेशन में। अच्छा, तो ये आप लोगों ने, आपका जो कज़न जी कत्ल हुआ है उसके बाद आपके जो है उन्होंने की है FIR? जी, मेरे मामू ने किया है इन पे FIR। इनका बहुत खौफ है, रासत हमारी जान को खतरा है, हमें अननोन कॉलर से हम कॉल आती हैं, हम आपको मार देंगे, आप सुलह करें नहीं तो हमारी जान को कुछ भी हो जाए, हमारी मौत की जिम्मेदारी है बस। ये लोग जो है जी, ये लोग लेकिन है, ये पुलिस जो ने कातिल तो पकड़ लिया। हाँ जी, हम पुलिस को अप्रिशिएट करते हैं, इन्होंने बहुत सख्त एक्शन लिया और हमारी आइंदा के लिए भी इनके लिए रिक्वेस्ट है कि मरियम नवाज CM वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लिए कि मतलब इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये इस कत्ल के हवाले से ये है कि ये जो इनके फरजान साहब हैं, हमारे कंप्लेनेंट हैं, मुद्दई हैं FIR के, इनका बेटा इस केस में मर्डर हुआ है। बकौल इनके कि वो इनसे भत्ता मांगते रहे हैं, उनसे डिमांड करते रहे थे कि हमें आप बता दें अदरवाइज़ आपको हम कत्ल कर देंगे। इससे पहले भी इनका ये मौक़िफ़ है कि पहले भी ये देते भी रहे हैं भत्ता इनको। तो जब इन्होंने इनकार किया तो उन्होंने फिर इनके बेटे को मर्डर किया। ये कब वाक़या हुआ, किस तरह मर्डर किया, जब आप जैबुको पे गए उस वक्त के क्या हालात थे? तो ये सिटी शरकपुर का ही वकूआ है, बाज़ार में ही कत्ल किया उन्होंने। और इनके पहले भी ऐसे मैटर चलते रहे हैं, लोग डरते थे इनसे। इक़दाम कत्ल और भत्ता और अगवा बराए तवान केसेस थे इन पे। ये भत्ता लेते रहे हैं वैसे? जी, पहले इन पे केसेस रहे हैं। हाँ, मगर भत्ता लेते थे और केस भी हुए इन पे? केस भी हुए हैं इन पे। और फिर ये इस केस में PO हो गए, इश्तिहारी हो गए, मुजरम इश्तिहारी थे हमारे पास। तो ये आपस में रिश्तेदार हैं दोनों तीनों, बाप बेटे? नहीं, सारे एक ही खानदान, एक ही घर के लोग हैं। अभी जिन्होंने इस लड़के को कत्ल जी किया है, जी, ये भी एक ही घर के बाप बेटा हैं। 3 बाप बेटा हैं और एक बाप बेटा। अच्छा। जी जी, ये 4 बाप बेटा ही थे जो इस केस में इन्वॉल्व थे। अल्हम्दुलिल्लाह CM साहब की विजन, IG साहब की हदायत और DPO साहब के डायरेक्शन पे ये थाना शरकपुर की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमने काफ़ी स्ट्रगल किया इन पर टेक्निकल तरीके से इनको हमने ट्रेस करके तो इनको अरेस्ट किया है। किस तरह जिस दिन कत्ल होया उस ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੌਂਕ ਹੀ ਖੜਾ, ਇਹ ਨਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਫੈਰ, ਦੂਸਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਤੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਸਿਰੇ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਿਆ, 3 ਫੈਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਸਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 2 ਮੌਕੇ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਦੀ ਕਰਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਨੱਸ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਬੂ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਧੀ ਪੈਣ ਦਾ ਹਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡੰਡੀਆਂ ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਮਸੰਤ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵਹਾ ਕੇ। तो उस तो इलावा इन्होंने कार्रवाई इस तरह की ਜਿਹੜੀ भी कोई लभनी, इन्होंने कोई मसन जो भी किसी को 1000 रुपया भी लभना वो भी ले लेना। कोई चनिया वाला चनिया वाले को इन्हें उतों ले लेने ने, नान ले लेने ने, गड़वी दुध की ले लैनी। किसी बंदे सारे जड़े ने वो ड्रैड होए, कोई बंदा कोई गल नहीं करता इन्होंने। DPO शेखुपुरा के अहकामात पर शरकपुर थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है बर वक्त और इन ख़तरनाक जो भत्ताखोर माफिया है इनको गिरफ्तार कर लिया है। और अभी जैसा कि मकतूल के वालिद ने बताया कि इनके बेटे को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया और इस चीज़ पर डेफिनेटली भत्ताखोरी हो या कोई भी मामलात हो, IG पंजाब और CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा के अहकामात पर DPO शेखुपुरा और उनकी टीम ने जो है ये ड्यूटी लगाई थी शरकपुर थाना के जो SHO हैं उनकी, और उनकी टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इन इश्तिहारी, यानी कि 2 पहले बता रहे हैं मुलजमान पकड़े गए थे लेकिन ये 2 मफरूर हो जाते थे, बार बार भाग जाते थे, इनको गिरफ्तार कर लिया है। और हम यही गुजारिश करते हैं कि पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई पूरी की है,
आगे चलकर होता क्या है, मामला क्या है, मसले कहाँ पर बनते हैं कि जब मुद्दई खुद डर जाते हैं या उनको किसी मामले से हटा दिया जाता है तो फिर कानूनी पेचीदगियों का फ़ायदा उठा के ये लोग बाहर आ जाते हैं। तो हमारी यही गुजारिश आला हुकाम से कि इलाके की पुलिस ने तो बर वक्त कार्रवाई कर दी है, अब आगे जो मामलात हैं उसमें कुछ इस तरह से फैसिलिटेट किया जाए, मुद्दईयान को भी और मुद्दईयों को भी चाहिए कि वो इस चीज़ पर जो है आगे भी कानून के मुताबिक जो कार्रवाई को जारी रखे ताकि ऐसे लोगों के इस तरह के मामलात का सद्भाव किया जा सके। और ये भत्ता किन के लोगों से लेते थे? हर किसी से लेते हर थे? किसी से लेते हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठे हैं सब देते हैं, कोई बताता नहीं है, कहते हैं कि हमें मार देंगे। वो बड़े बड़े लोगों बड़े से भी साहब लेते हैं? हैसियत यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबको सब देते हैं और जो इनको। मजदूर लोग तबका उसको भी नहीं छोड़ते? हाँ जी, ये मजदूर को तो वैसे ही मार देते हैं, 3 कत्ल इन्होंने पहले किए हैं, चौथा हमारे भाई का कर दिया इन्होंने। हमारे घर तो वैसे रेडी वाले जो हैं इन लोगों को भी हाँ नहीं जी, छोड़ते ये लोग? नहीं छोड़ते, ये छीन लेते हैं उनसे सब कुछ, हर किसी से छीन लेते हैं। ये काफ़ी देर पहले ना इधर आए हैं, एक ना लड़की आई है अपने बाप से मिलने के लिए, इसने गली में उसके ये सोना वगैरह जो उसके गले में था, कानों में था, उतार लिया इन्होंने। ये इस तरह बहुत जालिम लोग हैं। इतने जालिम है, जी। इतने खौफनाक है, जी। कोई पुलिस को भी कंप्लेंट नहीं करता? नो, उन्होंने कोई कंप्लेन वगैरह नहीं इनके खिलाफ की। इनका खौफ ही बहुत ज़्यादा, लोगों के अंदर खौफ इन्होंने पैदा किया हुआ है अपना। ये जी ये कहते हैं तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, और ये लोगों को कत्ल भी करते हैं, जान से मारते हैं और उसके बाद इतना डराते धमकाते हैं कि जो लोग केस करना चाहें या मुद्दई बनना चाहें अपने जुल्म के हवाले से बात करना चाहें तो उनको भी डरा धमका कर उनको कहते हैं ये एक कत्ल तो हमने कर दिया, हम पूरा पूरा ख़ानदान मार देंगे, और डर कर लोग जो हैं वो केस वापस ले लेते हैं। यहाँ पर ये जो लोग हैं जो मकतूल के कज़न्स हैं और मकतूल के जो वालिद हैं ख़ास तौर पर, उन्होंने FIR दर्ज कराई शरकपुर थाना में, और शरकपुर थाना की पुलिस ने DPO शेखुपुरा के अहकामात पर बड़ी स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की और 4 जो लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक वालिद है और उनके 3 बेटे हैं। और इनमें से 2 लोग तो जुडिशल जा चुके हैं, 2 हमारे पास अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो इससे थाना शरकपुर का जो एरिया है स्पेशली जो खौफ हरास है उसमें कमी आएगी इंशाल्लाह। तो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा के हवाले से बड़ा अच्छा ये काम भी है कि हम लोगों ने शरकपुर के लोगों को ये बत्ताखोरी और इस तरह के थ्रेट और इक़दाम कत्ल के माहौल से लोगों को रिलीफ मिला है हमारे इस एक्ट। अभी इनकी गिरफ्तारी के बाद, अच्छा इससे पहले भी क्या ये जो भत्ता नहीं देता था तो ये किस तरह डराते धमकाते थे, क्या करते थे? और सुनने में ये आया कि अगवा भी करते रहे हैं लोगों को। ये लाहौर का एक केस है इन पे, लाहौर डिस्ट्रिक्ट लाहौर में इनका एक बेटा अभी वो अभी अरेस्ट नहीं हुआ, आफाक और फाकू बल्लड़ उसका नाम है, तो वो वहाँ इन्वॉल्व रहा है। हमारे पास अभी वो अरेस्ट नहीं है, मगर इनकी हिस्ट्री है, ये कुछ लोग इनके पहले ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं और इन्होंने मुकदमात अब तक बच्चे कैसे रहे हैं, ये बच कैसे जाते हैं? ये बेसिकली होता ऐसा है कि या तो कंप्लेनेंट कंप्लेन ही नहीं करते, अगर कंप्लेन करते हैं तो फिर इनके साथ उनका पैचअप हो जाता है, तो इनकी वो वहाँ से बेल आउट हो जाते हैं। लेकिन आप लोग कार्रवाई करते हम हैं? लोग पुलिस के एंड पे तो स्ट्रिक्टली कार्रवाई होती है। इनको ऑलरेडी पहले भी अरेस्ट किया जा चुका है, जैसे अभी इस केस में ही ये मर्डर केस था, 4 एक्यूज थे, हमने 4 ही अल्हम्दुलिल्लाह अरेस्ट किए हैं। तो पुलिस के एंड पे तो कोई इनको रिलीफ नहीं मिलता, मगर चूँकि कंप्लेनेंट होते हैं वो, और जो कंप्लेनेंट मुकामी होते हैं वो फिर कुछ इनसे पैचअप हो के और कुछ इनके इन्फ्लुएंसेस से जो डर के वो इनके साथ फिर सुलह कर लेते हैं और इनकी ये बेल आउट। अभी ये जो नौजवान कत्ल हुआ इस केस में एविडेंस स्ट्रॉन्ग है आपके पास? इन लोगों ने क्या इंकशाफात किए हैं कि क्यों मार दिया, क्या मामला था? इनका तो ये मौक़िफ़ है कि हमारा इनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था तो इसलिए हमने इनको कत्ल किया, मगर चूँकि कंप्लेनेंट इस पर इसका मौक़िफ़ है कि जी इन्होंने बता मांगा था और पहले भी हमसे लेते रहे हैं, जब हमने इनकार किया है तो इन्होंने इसको मर्डर किया। इन लोगों पे पहले भी भत्ते के इस तरह के इन पे ऐसे इल्ज़ामात हैं। ये भत्ता लेते रहे लोग? जी जी लेते रहे जी। तो अभी जो भी मामला हो जी, लड़ाई हो, झगड़ा हो, ये जो भी मामलात हैं, किसी की जान ले लेना ये सरासर जुल्म है, जुर्म है, और एक 23 साल नौजवान को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर देना। और उसके वालिद ने हमें बताया जी कि उसके सर पे गोली मारी, फिर उसकी टांग पे, फिर उसके इस साइड पे भी गोलियां लगी हैं। तो बहरहाल इतने जालमाना तरीके से मार देना ये जुल्म है, और कानून के मुताबिक यकीनन इनको कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अब इस केस के हवाले से एविडेंस, आप जैसे कि बता रहे हैं कि एविडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो
इनकी, क्योंकि पहले भी माजी में डराते रहे हैं लोगों को, अब भी जो हमारे मुदई से बात हुई है कि उनको भी डर है कि उनको भी थ्रेट किया जाएगा, तो उस हवाले से उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से क्या मामला था? यही पॉइंट रेज़ हुआ था। मैं खुद इनके साथ था। DPO साहब ने बड़ी स्ट्रिक्टली हमें ऑर्डर किया था कि इनकी सिक्योरिटी को सबसे प्रायोरिटी पे रखना है। हम लोगों ने कोशिश की है, बल्कि इनको भी हमने कहा है कि जब आपने कहीं मूवमेंट करनी हो, स्पेशली जब केसेस के फॉलोअप में जाना हो, कचहरी में जाना हो, किसी बुगला के पास जाना हो, तो फिर आप हमें अवेयर करें, हमें आगाह करें। हम अपनी सिक्योरिटी इनको देते हैं। जब किसी कोर्ट में इन्होंने पेश होना होता है तो हम अपनी गाड़ी देते हैं इनको। जब किसी ऑफिस में इन्होंने जाना होता है, किसी हमारे सीनियर अफसर के सामने किसी दरख्वास्त के लिए, कंप्लेन के लिए, तो फिर भी हम इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। हाँ, सिक्योरिटी के हवाले से हमने इनको कहा हुआ है कि आपने जब भी कहीं जाना हो, जब रात के किसी टाइम आप मुझे कॉल करें, मैं इंशाल्लाह इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ और करते रहेंगे हम। चले, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो लोग इतना खौफ व हिरास इन्होंने फैलाया हुआ इलाके में, अब आप कानून की गिरफ्त में आए हैं, तो अब उम्मीद है कि ये लोग कानून के मुताबिक इनको सज़ा भी मिलेगी। जी इंशाल्लाह कानून के मुताबिक इनको सज़ा मिलेगी जी। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਮਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘੱਲਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੇ ਵਗੈਰਾ ਘੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਿਓ ਬਿਆਨ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਲਾਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਕੜਦੇ ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਤਿਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਦਰਖਾਸਤ ਤਿਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੂੜਾ ਸੇਵੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਧਮਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇੰਝ ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਫਿਰ। DPO ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, IG ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇਲਾਕੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾए। ये जी इनिशियली जो चीज़ पॉजिटिव इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जितना ख़तरनाक ये माफिया लग भी रहा है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो बर वक्त की है जो इलाके की पुलिस है और DPO साहब के अहकामात पर SHO साहब ने और उनकी पूरी टीम ने। और हम उम्मीद करते हैं कि इस शख्स का जवान साला बेटा मारा गया है, और जिस शख्स का बेटा इतना बेदर्दी से कत्ल हो जाए, उसकी तो दुनिया ही ख़त्म होगी। तो वो हम यही चाहेंगे कि इस केस की तफ्तीश डेफिनेटली पुलिस मेरिट पर ऑलरेडी, क्योंकि DPO साहब जो हैं वो अपराइट ऑफिसर है और उनकी टीम भी इस चीज़ को बड़ा बेहतर तरीके से लेके चलेगी, तो इस चीज़ को तफ्तीश मेरिट पर यकीनन होगी। और ऐसे लोग जो कि इतना खौफ व हिरास जिन लोगों ने फैलाया हुआ है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, ताकि आइंदा कोई किसी के बच्चे के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। और ये भत्ता खोर माफिया, ये तो कराची और डिफरेंट एरियाज़ में सुनने को मिलता था, लेकिन अगर यहाँ पर ये मामलात हो रहे हैं या हो रहे थे, तो डेफिनेटली उनका रोका जाएगा, ताकि इस तरह के मामलात आगे चल के और नुकसान ना पहुँचाया जा सके। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਮੈਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੈਡ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਘੱਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬਈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਸਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਘੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ है कि गलत है। बिल्कुल जी, और हम भी ये उम्मीद करते हैं और हमें इस चीज़ का यकीन भी है कि ये मेरिट पर तफ्तीश होगी, और अब ये जो माफिया है, भत्ता खोर माफिया, अब नहीं बच पाएगा। और हम यही दुआ करते हैं कि आइंदा कभी किसी के साथ ऐसा मामला ना हो, और आला हुकाम से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब, CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा और उनकी विजन को आगे लेके चलते हुए DPO शेखुपुरा और उनकी टीम जो है इस गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, कानून के मुताबिक उनको इबरत का निशान बनाएगी, ताकि आइंदा कोई किसी के लगते जिगर को जो है वो नुकसान ना पहुंचा सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।